خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ کوئی سیگمنٹ کا ہوتا ہے آغاز اور کوئی سیگمنٹ کا نام ہے معلومات ہی معلومات۔ آغاز کرتا ہوں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ایک مصرے سے کہ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے موتی رول دیے۔ ناظرین اکرام، ہمارے معلومات ہی معلومات سیگمنٹ کا آغاز ہوتا ہے اور نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ نے اپنا کردار ادا کیا، تعاون کیا ARYQ TV کے ساتھ، اور یہاں تک اس مقابلے کو پہنچانے میں اس مقابلے کے آڈیشن سے لے کر سلیکشن راؤنڈ تک کی محنت آپ کو کوئز کمپٹیشن کی وہ نیو پورٹس کی نظر آ رہی ہوگی۔ ARYQ TV اور نیو پورٹس کے کولیبریشن کے ساتھ یہ مقابلہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ آج نعمت افطار کے معلومات ہی معلومات یعنی کوئز سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹس ہیں۔ کنٹسٹنٹ اے سید زین نقوی کراچی یونیورسٹی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، اور کنٹسٹنٹ بی احسن احمد ہیں، دادا بوائے انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے، اس کو اپنے ادارے کو ریپرزنٹ کریں گے، اور کنٹسٹنٹ سی ہے محمد فہد علی بحریہ یونیورسٹی سے۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، اور یقیناً آپ تینوں کے چہرے پر اطمینان مجھے نظر آ رہا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ بڑے حوصلے سے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ لیٹس سی سر کہ کون سا بچہ آج بازی لے کر جاتا ہے۔ پہلا راؤنڈ بتاتے چلوں کہ بزر راؤنڈ ہوتا ہے، صحیح جواب دینے پر 10 نمبر، غلط جواب دینے پر 10 نمبر ان سے چھین لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ جو راؤنڈ ہوتا ہے ویژول راؤنڈ ہوتا ہے، کوئی تصویر کوئی خاکہ ان کو دکھایا جائے گا، انہیں بتانا ہوگا یہ عمارت، یہ شخصیت، یہ جگہ، یہ مقام، یہ چیز، اس کا نام کیا ہے۔ درست جواب دینے پر 10 نمبر پھر ان کے حصے میں آ جائیں گے، اور غلط جواب دینے پر کوئی مائنس نمبر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ راؤنڈ ہوتا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ۔ ہم فریکوینٹ ان سے کوئی 7-8 سوال 30 سیکنڈ کے دورانیے میں کریں گے، اور ان کو دینے ہوں گے درست جواب۔ پاس کا کوئی آپشن نہیں ہے، پاس نہیں کہیں گے آپ لوگ، جواب نہیں آتا خاموش رہیں گے۔ میرے ججز بزر راؤنڈ کا پہلا اور دوسرا سوال کریں گے تینوں کنٹسٹنٹ سے، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کروں گا میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ سب لوگ پہلا سوال بزر راؤنڈ۔ مسکراہٹ چہرے پہ ہونی چاہیے بھائی، ایسا نہیں کہ مسکراہٹ نہ ہو۔ اچھا یہ بتلائیے کہ صدیق ایک لقب ہے، کس صحابی کو ملا؟ سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ درست جواب۔ جی رضوان زیدی صاحب، سوال میرے ان سے کہ فاتح خیبر کون سے صحابی؟ جی حضرت علی۔ اچھا، بزر کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا یہ بچہ، تو اس لیے جو ہے نا، حالانکہ اے اور سی کوئی کم و بیش ساتھ ساتھ ہی بجا رہے ہیں لیکن پہلے اس کی بج رہی ہے، تو بزر جو ہے بزر کے اوپر ہتھیلی رکھا کریں تاکہ تاکہ جلدی بچ جائے۔ اسماعیل بھائی ماشاءاللہ آپ بھی ایکٹیو ہیں۔ اچھا جی، بزر راؤنڈ کے اگلے سوالات۔ غار ثور میں مکے والوں کی خبریں کون پہنچاتا تھا؟ سی غار ثور میں؟ جی جی آپ کو پتہ ہے؟ آپشن حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابو بکر۔ جی حضرت عبیدہ بن جراح۔ غلط جواب دیا آپ نے، اور نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس بزر راؤنڈ میں غلط جواب پر -10 ہو جائیں گے۔ اچھا جی نیکسٹ، غار ثور میں کھانا کون پہنچاتا تھا؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ درست جواب۔ قرآن کا ایک معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ جی آپشنز دوں، تقسیم کرنا، علم پھیلانا، یا جمع کرنا؟ جی علم پھیلانا۔ غلط جواب۔ میں نے کہا کہ غلط جواب مت دیجیے گا، آتا ہو تو دیجیے گا۔ جمع کرنا اس کا دوسرا مطلب ہے، یعنی جسے کہتے ہیں جمع و تدوین قرآن کے معاملات بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بتائیے قرآن کی کس صورت میں بسم اللہ بطور آیت نازل ہوئی؟ بی جی سورہ بقرہ، سورہ یونس، یا سورہ نمل؟ سورہ نمل۔ درست جواب۔ اچھا جی، اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب۔ درست جواب۔ عید الفطر کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ عید الفطر کی نماز یعنی میٹھی عید، ہماری جو عید آئی۔ جی پہلی شوال۔ درست جواب۔ اچھا جی، عید الاضحیٰ کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ یعنی بقرہ عید کی نماز کس تاریخ؟ پہلی ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ۔ درست جواب، کنسیڈر کر لیں گے، فوراً ریکور کیا۔ اچھا جی، امین امت کس صحابی کا لقب ہے؟ امین امت کس صحابی کا لقب ہے؟ جی آپشن اس میں آپ لے لیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت کیا کہتے ہیں خالد بن ولید، اور حضرت عبید عامر۔ حضرت سعد بن وقاص۔ غلط، ابو عبیدہ جو ہے، وہ جو میں عبید کہہ رہا تھا، عبیدہ، وہ عامر بن جراح۔ بہرحال غلط جواب، اور غلط جوابات دے کر ٹیم اے جو ہے وہ بڑا غلط کام کر رہی ہے، اور یہ غلط کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ غلطی لے کر ڈوب جاتی ہے بندے کو۔ اچھا خاصا جیتتا ہوا کنٹسٹنٹ بھی پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ غلط جواب دینے کی وجہ سے اس کے -10 ہو جاتے ہیں، سکورنگ اس کی بہت لیس ہو جاتی ہے۔
विजुअल राउंड है और पहला विजुअल टीम ए के लिए इस्माइल जलाली साहब दिखाइए जी। टीम ए, ये कौन सा मकाम है? खाना काबा। खाना काबा तो है, खाना काबा की कौन सी इस मुकद्दस शय का नाम है? ये क्या है खाना काबा का? ये क्या, कौन सा हिस्सा है? ये क्या चीज है? आप इस चीज का नाम बता दीजिए। ऑप्शन। हर घर में होती है ये चीज। अब इसमें भी ऑप्शन लेंगे आप जी? किबला। नहीं, काबे की कोई नहीं, आपको इजाजत नहीं है, बस जो जिसके लिए विजुअल है बस वही बताएगा। आगे बढ़ाते हैं भाई। बाबे काबा है, दरवाजा है, इसमें ऑप्शन नहीं दे सकता क्योंकि इसमें कोई क्लू बनता ही नहीं था। ये मकाम है, काबे से रिलेटेड है, दरवाजा है, आपको बता देना चाहिए। अब दरवाजा कहते हम इसे दुरुस्त जवाब जी। बी कंटेस्टेंट आपके लिए विजुअल है, बताइए ये इसे क्या कहते हैं? आईफिल टावर। दुरुस्त जवाब। सी के लिए, आपके लिए तो बड़ा आसान था भाई। सी जी, बताइए ये किस इमारत की तस्वीर है? और ये मैं इसमें क्लू दे सकता हूं आपको कि ये एक मस्जिद है। वो तो नजर आ रहा है? अच्छा, मतलब मुझे तो लग रहा है आप अंदर नमाज पढ़ रहे हैं उसके। अच्छा जी कंट्री? जी पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान में ही है। चले और बोलिए, पाकिस्तान ही में है। और ये भी बता दूं कि कराची में भी नहीं है, लाहौर में है। चले और बताइए इससे ज्यादा। अब इस शाही मस्जिद। गलत जवाब। ये ग्रैंड मस्जिद लाहौर है और आपके गलत जवाब की वजह से आपके -10 नहीं होंगे। विजुअल राउंड में हम नंबर्स नहीं काट रहे होते। अगला विजुअल ए के लिए कंटेस्टेंट ए जी। ये किस अजीम, वाह क्या बात है। हजरत लाल शबाज कलंदर है दरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। अगला विजुअल बी, कंटेस्टेंट बी के लिए जी। ये कौन सी तारीखी इमारत है? ये कराची में। जी बिल्कुल कराची में रेलवे है। स्टेशन। क्या बात है। कंटेस्टेंट बी, आप गए रेल से कभी? जी। हाँ, तभी आपको पता है, वरना मैं तो नहीं बता पाता, मुश्किल हो जाता। अच्छा जी, कंटेस्टेंट सी के लिए अगला विजुअल जी। सर सईद अहमद खान। क्या बात है। कंटेस्टेंट सी बहुत एक्टिव एंड फास्ट चल रहे हैं, लेकिन रैपिड फायर करेगा फैसला कि ये कितने एक्टिव है और कितने फास्ट है। जी नाज़रीन करम, विजुअल राउंड खत्म हुआ और हम इसी तेजी के साथ रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ए, कंटेस्टेंट ए के लिए जी। इस्माइल भाई काउंट डाउन दीजिए। कुरान में सबसे पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई? सूरह हिरा। गलत। नुज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा का नंबर कौन सा है? सबसे पहले हिजरत मदीना किसने की? वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने एलानिया हिजरत की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, पहले बेटे का नाम बताइए। पहले जी। हज़रत इब्राहिम। गलत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। हजरत इसहाक अलैहि, गलत जवाब। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। यूनुस। गलत जवाब। अच्छा जी, कंटेस्टेंट बी, आज रैपिड फायर राउंड में अब आपकी बारी है और आपका वक्त शुरू होता है अब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा का नाम क्या था? यसरब। मदीना, दुरुस्त जवाब। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के घर क़याम फरमाया? हज़रत अय्यूब अंसारी। दुरुस्त। पहली नमाज जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां अदा फरमाई? मस्जिद कुबा। कहां? इलाके का नाम बताइए। कुबा। गलत। बताइए कुरान की किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए? सूरह तौबा। उम्मुल किताब किस सूरत का नाम है? सूरह फातिहा। हजरत पीर मेहर अली शाह का मज़ार कहां वाक़ है? ठीक है, आपने ठीक है, आपने 1 2 3, आपसे मैंने 6 सवाल किए जिनमें 3 आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। और अगला रैपिड फायर कंटेस्टेंट सी के लिए तैयार हैं आप? जी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बताइए। हजरत हाजरा। दुरुस्त। वो कौन से पैगंबर है जिनकी बिनाई बेटे की जुदाई के सबब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। कुरान करीम में जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें आई हैं? कुरान की एक सूरत है सूरह बकरा, इसका मानी बताइए। ये बकरी, गाय। दुरुस्त जवाब। शब हिजरत किस सहाबी को रसूलुल्लाह ने अपने बिस्तर पर सुलाया? हजरत अली। दुरुस्त जवाब। दुआए रसूल और मुराद रसूल किस सहाबी को कहते हजरत हैं? उमर। दुरुस्त जवाब। खाने के सोडे का कीमियाई फार्मूला बताइए। ठीक हो गया। रैपिड फायर राउंड हुआ खत्म और कंटेस्टेंट सी की तरफ फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है। और कंटेस्टेंट ए जो है वो आज सोच विचार में रहे, और कहा जाता है जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। आप थोड़ा बहुत सोचिए, वक्फे के बाद वापस आता हूं।
जी नाजरीन, मालूमात ही मालूमात को इस सेगमेंट में 3 कंटेस्टेंट ए सैयद ज़ैन नकवी कराची यूनिवर्सिटी, कंटेस्टेंट बी एहसन अहमद दादा भाई इंस्टीट्यूट और कंटेस्टेंट सी मोहम्मद फहद अली बहरिया यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक था। और जैसे कि रिजल्ट आप लोग सभी समझ चुके हैं कि किसने बहुत ज़्यादा जवाबात दुरुस्त दिए और किसने गलत दिया और किसने नहीं दिए। इस वजह से हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आज आपके सामने, मतलब क्लियर है पिक्चर वैसे, लेकिन फिर भी बताना चलूँ कि नेल्सन पेंट वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है जो इन तीनों के साथ जाएंगे। अच्छा, एक हमारे गिफ्ट हैम्पर हैं जो थोड़ा सा ताख़ीर हो गई आने में, वरना वो भी इनके साथ जाते हैं इंशाल्लाह शाम से, और कल से इंशाल्लाह कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे फूड बस्ती, क्योंकि उनको मैं इंडोर्स ज़रूर करूँगा। हमारी पूरी टीम के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं फूड बस्ती वाले, और इसके अलावा नेल्सन पेंट वाले, WB भाई हिमानी वाले गिफ्ट हैम्पर। आज सेवेस्टन वॉचेस वालों ने गिफ्ट हैम्पर भेजे हैं 2 मतलब सेगमेंट्स के लिए, और हबीब ऑयल वालों की जानिब से ग्रैंड फिनाले में गिफ्ट हैम्पर्स हैं, होम अप्लायंसेज हैं। इन सभी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, बच्चों के लिए तोहफे भेजे। मैं आज फैसला से कबल बता दूं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब की और रिजवान भाई की राय आज के मुकाबले से मुताल्लिक ली जाए। सर कैसा लगा, क्या आज वाक़तन क्या दुरुस्त रहा, क्या कुछ? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह ये, और ये वो नौजवान हैं जो अब कुछ दिनों के बाद अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे या कॉलेजेस में जाएंगे या और जगहों पर भी जाएंगे। लेकिन ज़रा सा मैं ये चाहूँगा कि शेयर करूँ इनके साथ भी, अपने बहन भाइयों के साथ भी, कि हमारे यहाँ अब कुतुब के पढ़ने का रुझान कम हो गया है। मालूमात आम्मा की आम सी किताबें जो बनती हैं, बिकती हैं, उसके अंदर कहीं अपडेटेड चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। कम से कम आपको बुनियादी कुतुब सीरत की पढ़नी चाहिए, तारीख़ की पढ़नी चाहिए। मसलन अगर आपके खुलफ़ा पे पढ़ना है तो तारीख़ुल खुलफ़ा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की है। सीरत पर पढ़ना है तो मदारिजुन नबुव्वत है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की, और इब्तदाई कुतुब में अगर पढ़ना है तो सीरत इब्न हिशाम या सीरत इब्न इसहाक़ पढ़ें, ताकि आपको ये पता तो चले कि अगर क़ुबा की बात है तो क़ुबा क्या है, और अगर शब असरा की बात है तो असरा के। ये अगर मालूमात आपके पास नहीं और बीच से आपने एक चीज़ निकाल ली और आपने निकाल के तो आपको आगे पीछे कुछ पता ही नहीं, सही बात, तो सब बेकार है। बिल्कुल सही, और अपनी तारीख मालूम होनी चाहिए और सुनहरी अल्फाज में लिखी गई। दिलचस्पी का मकसद तो यह है कि आपकी मालूमात आम्मा का वो ख़जाना जो आप तक पहुँच रहा है वो तारीख़ यूरोप के हवाले से हो या तारीख़ इस्लाम के हवाले से हो, मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रिजवान ज़ैदी साहब, आपकी क्या राय है आज? राय ये कि सलमान भाई, कराची की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा संगीन मसला ये है कि इदारों में हम निसाबी सरगर्मियों का फुकदान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिबेट फिर भी हो रही है तो आपको उसका टैलेंट ज़्यादा नज़र आता है, जहनी आजमाइश और बैदबाजी ख़त्म हो चुकी है जी। तो ये इदारों को चाहिए और ये सरकारी सतह के ऊपर इस नौयत के प्रोग्राम का इनेकाद हो ताकि साल भर की मशक़ होगी, किया जाए, अपनी तारीख जिंदा की जाए, अपने मामला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये उस फुकदान की वजह से ये परेशानी जो है वो सामने आती है। सब जो है ये अपनी मदद आपके तहत, ये वो खुरदुरा पौधे हैं जो अपनी मदद पर बहुत निकल रहे हैं, इनकी कोई नमोदमाइश नहीं है। बिल्कुल सही है, इनको कोई पानी मुसलसल फराहम नहीं कर रहा, और अगर दिया जाए, आबियारी की जाए तो ज़रख़ेज़ होंगे और इनसे इक्तिसाब फैज़ करेगी दुनिया। नहीं देखिए, जाहिर है फलों से लदा हुआ दरख्त जामा कराची के लिए तो जाहिर है कि मेरी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजरी है, मुझे मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूँ। इदारा मौजूद है, असातिज़ा मौजूद है, तरबियत होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बच्चा नहीं है, जामा कराची है वहाँ इन्वॉल्व। बिल्कुल, अब्दुल्ला दादा भाई इंस्टीट्यूट है, अब्दुल्ला दादा भाई ज़ाती तौर पर जानता हूँ मैंने, बिल्कुल बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी, अच्छे इंसान है। इसी तरीके से बहरिया वगैरह, ये बड़े इदारे हैं, इनको असातिज़ा को चाहिए कि कुछ वक्त अपना जो औकात कार है आप उसके अलावा भी बच्चों के लिए दें, ये एक्टिविटीज होनी चाहिए, काउंसलिंग करें इनकी, इनको बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं लिटरली, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यहाँ मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा कि कोई शो टाइप कोई चीज़ हमें जो है अलावा रमज़ान भी करनी चाहिए QTV के ऊपर, उससे ये एक्टिविटी जो है ये खुलकर आएगी और लोगों में इसका, बच्चियों में इसका इंटरेस्ट पैदा होगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर किसी और मौके पर भी ये काम अगर मुमकिन हुआ तो हम करेंगे। उन तक मैंने पहुंचा दी है बात जो हमारी अथॉरिटी है इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं अब रिज़ल्ट आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो कंटेस्टेंट आगे सफ़र कर रहे हैं वो कंटेस्टेंट सी मोहम्मद फहद अली है, बहरिया यूनिवर्सिटी से। बहुत मुबारक हो आप। सैयद ज़ैन नकवी हमारे साथ तीसरे नंबर पर रहे और एहसन अहमद हमारे साथ दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ तक आए और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास और मौके हैं। बड़े तगड़े अंदाज से उतरिएगा मैदान में, क्योंकि बहुत अच्छे तगड़े कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं आगे।
बताते चलूँ न्यू पोर्ट्स का ताउन हमारे साथ रहा क्विज कंपटीशन के अरेंज करने में। ARY-Q TV के साथ इन्होंने अपना किरदार अदा किया है। नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है जो तीनों कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। और अब होगा एक वक्फा, वक्फे के बाद मुकाबला हुस्न क़िरात होगा और उसमें अलहाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब मेरे और आपके साथ होंगे। मिलता हूँ आपसे इस वक्फे के बाद। मुकाबला हुस्न क़िरात।